later. Now we are 17. I can see Pankaj is there. Let me see the list. Pooja Chehel has just joined. Let me just see if my MPhil class is all here. Bashir, Bhavna, Geeta Rai, Mansi, Monica, Pankaj, Shweta. काफी लोग आ गए हैं. Rajlakshmi. Abhi we are waiting for Sadhana. We are waiting for Narayan. Vidushi has joined. We are waiting for Vidushi. No, Vidushi has joined. Hi, ma'am, she says. Yeah. And we are waiting for Dolly. Right? So we'll just give it another 2-3 minutes. I hope they will join. Otherwise, we'll introduce Mansi and we can then start. MPhil students, do you know if Narayan is going to join, Dolly is going to join, Sadhana is going to join? I can see 3 names missing. Anybody has any idea? Nobody has any idea. Okay. Okay, I think we might start. Mansi, are you ready? Mansi? Hanji ma'am. Okay. So let me now introduce Mansi to you all. So I welcome everybody again to this Doing Research series. And I'm very happy to introduce you today to my colleague, Mansi Aneja, who teaches in Jesus and Mary College. And Mansi did her MPhil with me. So our relationship started like that. She was my student in MEd once upon a time. And then she did her MPhil research with me. And we really enjoyed her MPhil research because her MPhil research was on Kashmir. And without going to Kashmir, she did a very good study on Kashmir. And that's what she wants to share with you today, how she did it, why she did it, and what her assumptions were when she took it up, and how we are able to do research based on secondary sources, but also treating them as very bona fide sources. She will tell you all about that. So मुझे क्या लग रहा था कि आपको हर बार नए डिजाइन से, नए अप्रोचेस से मैं परिचित करूं, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपका एक जो दायरा है वो बहुत विस्तृत हो जाता है. And you are able to then understand from the experiences of others what would be more convenient, suitable, appropriate, and doable for you. Convenience and doability are very important considerations in research. Sometimes we want to, I would like to go and live on the moon and do research, but we know we can't live on the moon. So these are some issues which Mansi is going to highlight to you today, while she also, of course, explains to you कि उन्होंने actually अपना research क्या और कैसे किया है. So मैं चाहूंगी कि हम सब अपना कैमरा बंद कर लें, अपना वीडियो अपने आप को म्यूट पे रख लें, और हम अपने आप को अनम्यूट करेंगे लास्ट में, टुवर्ड्स द एंड, जब मानसी का प्रेजेंटेशन और डिस्कशन खत्म हो जाएगा. And उसके बाद we will open the forum like we always do to questions and answers. Meanwhile, आपको कोई भी question अगर सूझ रहा है या आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में अवश्य उसको टाइप कर लीजिए. Oh, I can see that Shifali and Vishaka have joined. Hello and welcome both of you, to this forum. Okay, so Mansi, you can take 40 minutes or so, जो भी आपको समय चाहिए, and I will request you to speak in a bilingual mode as we always do. It's over to you, Mansi. We look forward to a very, very rich and promising session from you. Thank you for such a generous introduction. आपने colleague बोला तो मुझे बहुत weird लगा. Based on the previous format जो कि तुलिका और ऋषभ ने present किए, मैंने अपनी presentation को strictly
कुछ हेडर्स के ऊपर जो नमिता मैम ने हमसे शेयर किए थे उसके अंडर रख के अपनी प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर किया है। तुलिका, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी इफ यू कैन स्टार्ट शेयरिंग द स्लाइड्स एंड वी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। Tulika, can you hear me? Thank you, Tulika. I can see the slide that are opening. So, मेरा MPhil के dissertation का heading था lived experiences of childhood. बचपन को लेके मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले से था। स्पेशली ये इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया जब मैंने DLED में एडमिशन लिया 2006 में। हमने कुछ एकेडमिक रीडिंग्स पढ़ी थी उस बचपन के ऊपर, जैसे मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है, TS सरस्वती का पढ़ा था हमने, और हम बचपन को समझने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ते थे। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि ये हम बचपन को जो कंस्ट्रक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, वो कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, और वो कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पैरामीटर से देखा जा सकता है। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था बचपन के बारे में पढ़ना। प्लस हम लोगों के प्रैक्टिकम होते थे DLED में, जिसमें राशियन विशाखा वुड नो वेरी वेल बिकॉज दे टीच दैट प्रैक्टिकम। ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन करके हम लोगों का प्रैक्टिकम होता था, जहाँ हम बच्चों को अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व करते थे। हमारा SCP स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करके भी एक प्रैक्टिकम होता था फर्स्ट ईयर में, जहाँ हम 5-5 बच्चों से स्कूल में जाके कुछ बात करते थे, उनके बारे में समझने की कोशिश करते थे, उनसे तरह तरह के विषयों पे चर्चा करते थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था इस बचपन के स्वरूप को समझना और उसके एक्सपीरियंसेस को देख पाना। और ये इंटरेस्ट ऑफ कोर्स बढ़ता गया जब DLED के बाद MA किया और फिर उसके बाद MEd और MPhil किया। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। MA सोशियोलॉजी में स्पेसिफिकली हमने एवरीडे रियलिटीज और लिव्ड रियलिटीज करके कुछ थ्योरीज पढ़ी। तो मुझे ये ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस और लिव्ड रियलिटी जैसे टर्म बहुत फैसिनेट करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हम एक्चुअल में रियलिटी में एक स्लाइस ऑफ लाइफ को लेके बच्चों की जिंदगी का हम ऑब्जर्व कर पाए, खुद जान पाए, और उसमें बच्चों का भी वॉइस हो। सो विद दीज collated, scattered ideas, I wanted to do something on childhood. And for a very long time, I didn't have any idea what I wanted to do because it didn't start with very specific research question. मेरे पास वो लिखे हुए रिसर्च क्वेश्चंस नहीं थे। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, मैं स्क्रीन को देख के बोले जा रही हूँ। क्या सब लोग? We can hear you very clearly. Please go on, Mansi. ठीक है, थैंक यू नमिता मैम। हाँ, तो मेरे पास कुछ फिक्स्ड रिसर्च क्वेश्चंस नहीं थे कि मुझे इन्हीं के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। मुझे ये भी नहीं पता था मैं बचपन को किस पर्सपेक्टिव से, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस एंगल से देखना चाह रही हूँ, किस परिवेश में देखना चाह रही हूँ। मुझे इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो बट जानना था बचपन को और समझना था। एक पर्सनल ट्रैजेक्टरी भी इसके साथ ओवरलैप हुई। आई वाज एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, तो थोड़ा और इन डेप्थ लेवल पे समझ बनाने का बहुत इच्छा था कि बचपन को कौन डिफाइन कर रहा है, बचपन किन फैक्टर से डिफाइन हो रहा है, क्या सिर्फ एडल्ट्स ही बचपन को डिफाइन करे जा रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं कर सकते, क्या बच्चों का कोई रोल भी होता है, क्या बचपन इतनी महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्ट है और एज अ टीचर, एज अ मदर मुझे उसको समझना चाहिए और किन पैमानों से समझना चाहिए। तो ये बहुत सारे स्कैटर्ड आइडियाज लेके मुझे कुछ रिसर्च करना था इस पे।
So that is how the whole envisioning of the whole lived experiences of childhood came into being. और ये स्टार्टिंग से लेकर कुछ मुद्दे या सवाल नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी, जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ टिप्पणियां थी, तो ये सब लेके हम लोग आपस में डिस्कस करते थे और नमिता मैम से इस बारे में कुछ कुछ डिस्कशंस होती थी. तुलिका, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्लाइड नंबर 3 पे आ जाइए प्लीज. स्लाइड 3 खोल दीजिए प्लीज. सो इन्हीं सवालों, टिप्पणियों और ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत इनिशियली जब मैंने एमफिल का डिसर्टेशन स्टार्ट करना था, तो ये बात हुआ कि स्लम में बचपन को स्टडी किया जाए, बट कुछ कारणों से वो हो नहीं पाया. और इसी बीच बहुत सारी किताबें, बहुत सारे राइटिंग्स, बहुत सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते इट जस्ट स्टक दैट व्हाई कैन नॉट वी अंडरस्टैंड चाइल्डहुड फ्रॉम द रीडिंग ऑफ लिटरेचर. शायद जरूरी नहीं है कि हम फील्ड में ही जाके बचपन की समझ बनाएं, हम किसी पर्टिकुलर लिटरेचर के जॉनर को लेके भी बचपन की समझ बना सकते हैं. तो मेरा बचपन से एक बहुत फैसिनेशन था कश्मीर को लेकर. मैं कश्मीरी नहीं हूँ और मेरा कश्मीर से दूर दूर कोई लेना देना भी नहीं है, बट एक बहुत ही इन डेप्थ फैसिनेशन था. उसका एक बहुत रीजन है, अगेन मेरे बचपन का एक्सपीरियंस. आई एम बॉर्न इन 87, तो 90s के टाइम पे टीवी में दूरदर्शन चलते हुए न्यूज आते रहता था और कश्मीर का बहुत कवरेज होता था. तो ज्यादा समझ नहीं आता था क्योंकि छोटी थी क्या हो रहा है, बट कश्मीर कश्मीर सुनाई देते रहता था और बहुत सारे विजुअल्स देखने को मिलते थे. एंड इट न्यूज़पेपर में वो विजुअल्स देखने को मिलते थे और घर में बहुत सारी चर्चा सुनाई देती थी जब ऐसी कोई न्यूज आती थी. तो मुझे एज अ चाइल्ड बहुत फैसिनेट करता था. फैसिनेट नहीं, मतलब फैसिनेट सही शब्द नहीं है, बट मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगता था ये समझना और जानना कि मैं तो यहाँ पे दिल्ली में रह रही हूँ, मेरा एक सिक्योर घर है, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, बट मैं जब कश्मीर की न्यूज देखती थी एज अ चाइल्ड, मुझे बहुत सवाल ऐसे दिल में आते थे कि अगर मैं कश्मीर में इस टाइम पे होती तो मैं क्या करती, अगर यहाँ पे ये हो रहा है, अगर यू नो इफ आई एंड अप लूजिंग अ फैमिली मेंबर, व्हाट वुड आई डू. सो बहुत समय मैं इन चीजों के ऊपर सोचते रहती थी और बहुत सारी चीजें भी इफेक्ट करती थी. से फॉर एग्जाम्पल जब कोई मिलिटेंट को मार दिया जाता था, न्यूज में कवरेज आती थी कि उस आतंकवादी को मार गिराया या वो ढेर हो गया. लेकिन जब कोई आर्मी पर्सनल उनकी डेथ होती थी तो न्यूज में कवरेज होती थी हमारा एक ऑफिसर शहीद हो गया. तो यू नो बीइंग अ यंग चाइल्ड, मुझे ये बड़ा मतलब आई कुड ऑब्जर्व एज अ वेरी यंग चाइल्ड दैट एक इंसान के मरने पे ढेर होना कह रहे हैं और दूसरे इंसान के मरने पे शहीद होना कह रहे हैं, और साथ साथ कुछ घर में कमेंट्री भी चलते रहती थी. तो जैसे अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी देखने को मिलता था, टीवी पे कवर हो रहा होता था, तो माय मदर यूज्ड टू से इनको तो निकाल निकाल के घरों से मारना चाहिए, इनको तो सही कर देना चाहिए. और किसी ऑफिसर के डेथ का न्यूज कवर होता था तो ऐसे सुनने में मिलता था अब इनकी फैमिली का क्या होगा. सो फ्रॉम अ वेरी अर्ली ऑन देयर वाज something of a strong connect. For me as a young child, Kashmir was a very distant but a very intriguing place, and where killing of people was covered and discussed in different terms. So ये मुझे बहुत impact करता था. मैं कभी भी
पॉलिटिकल थ्योरी में इंटरेस्टेड नहीं रही, बट ये चीजें मुझे बहुत इंट्रीग करती थी, स्पेशली कश्मीर से रिलेटेड। और हमारी लोकेलिटी में कोई कश्मीरी या हमारे नेबर्स नहीं थे, बट कभी कभी जैसे कश्मीर से लोग शॉल और कुर्ते बेचने आते थे, तो दादी उनके साथ कॉन्वर्सेशन करती थी, या कुछ नेबर्स अजीब से उनको कुछ कुछ बोलते थे। तो मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे ये सब चीजें बहुत बांध के रखती थी। मतलब मैं इस बारे में कुछ पूछ नहीं पाती थी, बट मेरे दिमाग में चलते रहता था। तो उसके बाद स्कूलिंग हुई और हम सब करियर के गोल में बिजी हो गए, बट ये सब कुछ चीजें मेरे दिमाग में स्टक रही। सो जब एमफिल में एक मौका मिला ये सब करने का, तो तुलिका, कैन वी कम ऑन स्लाइड 3? Mansi, drink some water. Drink some water. हाँ जी मैम। Mansi, I think I am presenting slide 3. You want the next one? अच्छा, सॉरी, मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, तो मुझे पता भी नहीं लग रहा। ठीक है, यू आर ऑन स्लाइड 3? Yeah, you're not able to see the Sample of the screen? study. Sample of the study. Your book covers are there. हाँ जी, हाँ जी। सो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 3 बुक की फोटोज लगाई हैं और उनके ऑथर्स का फोटो भी लगाया है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगी कि ये 3 किताबें क्यों चुनी गई, इनके पीछे चुनने का एक स्पेसिफिक रैशनल था, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि यही 3 किताब क्यों चुनी गई और बाकी किताब क्यों नहीं चुनी गई। सो पहली बात तो ये 3 किताब ऑथर्स अपने ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए लिख रहे हैं। दे आर ऑल ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, ये फिक्शन पे बेस्ड नहीं है, या अपने जीवन के बारे में बता, या अपनी कम्युनिटी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं, जो कि कश्मीर में तीनों ऑथर्स ने जिए। ये उनकी अपनी बात है, अपने नेबर्स की बात है, फैमिली की बात है, कम्युनिटी की बात है। इन तीनों के पीछे एक और रैशनल ये भी था, ये जो ग्रोइंग अप एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बता रहे हैं। I can see one message, voice is not clear. Is it better now? If there's anybody with their microphone on, please switch it off, and please switch off your video. That will improve the voice quality. Thank you. Shall I continue, ma'am? Please continue. Please continue. हाँ जी, हाँ जी। So एक और रीजन ये था कि ये सेम टाइम पीरियड में थे। अपनी बचपन के ऊपर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से मेरी ये समझ बनी थी, जैसे अगर हम कुछ थ्योरिस्ट्स को पढ़े तो वो बोलते हैं कि बचपन भी उन्हीं सोसाइटल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है जैसे एडल्ट्स होते हैं, या एडल्टहुड का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें समझना पड़ेगा बचपन को लोकेट करके एक पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में। हम एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन थ्रू आउट नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑथर्स का काम उनके ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस पे था, स्पेशली ड्यूरिंग 90s एंड स्पेशली बेस्ड इन कश्मीर। कश्मीर भी स्टार्टिंग से हम लोगों, जब मैं नमिता मैम से डिस्कस करती थी, हम यही बात होता था कि अगर हम बचपन को समझने की कोशिश कर रहे हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, तो कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत तरह तरह का होता है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये भी रूट करना जरूरी था कि हम एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ले रहे हैं, बिकॉज एज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वुड चेंज, द ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन दैट कॉन्फ्लिक्ट एरिया वुड ऑल्सो चेंज। सो हमने टेम्पोरली और स्पेशली लोकेट किया कश्मीर में ग्रोइंग अप एक्सपीरियंसेस इन ऑथर्स के 90s के टाइम पे। तीसरा रीजन इन ऑथर्स को लेने का था, ये एक कश्मीरी नेटिव का पर्सपेक्टिव बता रहे थे।
So we were getting a sort of insider's perspective into their lives. This was not something which is written by the third person about their lives. This is something which they are reflecting back, memorizing, going back, connecting, reflecting, and then writing. So ये मुझे एक कश्मीरी नेटिव का पर्सपेक्टिव पता लग रहा था, बिना किसी हिंड्रेंस के, जिसे बोलते हैं अपनी दिल की बात वो रख रहे थे और सारी चीजों को बहुत सारे चीजों को टच करते हुए वो अपने ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस के ऊपर शेयर कर रहे थे. तो दैट वाज अनदर रीजन व्हाई दिस स्टडी वाज चोजन. और लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, there was this always personal quest and area of interest ये जानने का कि कश्मीर में बचपन किस तरह का होता है, बच्चे किस तरह की क्या नॉर्मल स्कूलिंग चलते रहता है, खेला जाता है. और मुझे तह तक बात कभी पता नहीं चलती थी, क्योंकि जब न्यूज में हम कश्मीर को पढ़ते थे तो बस यही होता था कि स्कूल 3 महीने से बंद है, मुठभेड़ में ये हो गया. तो बस क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स डेटा सुनने में और पढ़ने में मिलता रहता था, कभी भी तह तक बात ही नहीं पता चलती थी. क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं हूँ और मैं किसी कश्मीरी को शायद पर्सनली जानती नहीं हूँ, बट हमेशा ये क्वेस्ट रहता था कि एक्चुअल में जिंदगी कैसे जीते हैं, बच्चों की लाइफ कैसे होती है. और मैंने थोड़ा इस रीजन से भी मैं ज्यादा पैशनेट हो गई थी, बिकॉज मैं खुद माँ बनने वाली थी उस टाइम पे. तो मुझे बस जानना था कि बचपन एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में किस तरह का होता है. So that was the reason why these 3 particular autobiographical novels were chosen. पहला है Our Moon Has Blood Clots. राहुल पंडिता ने इस नॉवल में अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है. राहुल पंडिता एक कश्मीरी पंडित थे और बाकी कश्मीरी पंडितों की तरह वो अपना घर छोड़ के they had to go into exile and they shifted from Kashmir to Jammu and then to Delhi. So, as the name of the book suggests, it's a memoir of lost home in Kashmir. So, बहुत अपने experiences से, example से ये share कर रहे हैं कि ठीक है हमने घर तो change कर लिया, but बहुत कुछ छूट गया या बहुत कुछ reclaim नहीं हुआ. कुछ festivals का बात किया, अपनी cultural identity की बात करी, अपने डर की बात करी, एक लॉस ऑफ ट्रस्ट की बात करी, एक कॉमन एक्सपीरियंस की बात करी जब ये रीसेटलमेंट कॉलोनीज में गए, एंड सो ऑन. द सेकेंड नॉवल इज कर्फ्यूड नाइट. बशरत पीर ने लिखा था. तो बशरत पीर ने कर्फ्यूड नाइट, as the name is suggesting, the underlying idea that he was talking and covering in the novel is कि किस तरह से बार बार कर्फ्यू लगने से उनकी लाइफ इंटरप्ट होती है, किस तरह से हर पॉइंट पे, हर जगह पे फ्रिस्किंग हो रही है, किस तरह से एक 2 तरह की आवाजें निकल के आ रही हैं. आप मिलिटेंट्स की लड़ाई को रेजिस्टेंस बोल रहे हैं या उनकी एक वैलिड डिमांड है. आप कश्मीर को एज एन इंडिविजुअल एंटिटी लेके बोल रहे हैं या उसको एक इंडियन ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं. सो इतने टेक्निकल टर्म्स में ना जाते हुए बशरत पीर इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि इस सब जद्दोजहद में या इस सब कॉम्प्लेक्सिटी और परप्लेक्सिटी में उनकी ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे. जैसे बहुत फैसिनेशन रहता था एज अ टीनेजर बशरत पीर और उनके भाई को मिलिटेंट से कैसे दिखते हैं, कहाँ गए, कौन सा वेपन यूज करते हैं. बट इनके फैमिली वाले हमेशा डरते रहते थे. they didn't want their son to become a militant, so he was sent out of Delhi to pursue his higher studies. आई थिंक इनके फादर IAS ऑफिसर थे, तो एजुकेशन को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन था.
काफी सालों बाद ये वापस गए एक रिपोर्टर बन के, और उन्होंने he became a conflict reporter and he covered many stories and many narratives of the people which had influenced him while he was growing up in Kashmir. तो ये वापस कश्मीर में गए, बहुत सारे केसेस फॉलो किए, बहुत सारे लोगों से मिले, और जो मिसिंग लिंक्स थे उनको ज्वाइन किया. तीसरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल रही मेरे लिए पढ़ने के लिए, मुन्नू है मलिक साजिद की. ये ग्राफिक नॉवल थी, और मुन्नू आई थिंक इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द 3 ऑथर्स. इन्होंने मलिक साजिद ऐसे ऑथर थे जो कि कश्मीर छोड़ के गए नहीं थे. लाइक पंडिता एग्जाइल में गए थे, बशरत पीर को उनकी फैमिली ने बाहर भेज दिया था क्योंकि वो मिलिटेंट नहीं बनना चाहते थे. मलिक साजिद ऐसे ऑथर हैं जो कि कश्मीर में ही कंटिन्यू किए अपना, बट इनका इंक्लिनेशन आर्ट एंड क्राफ्ट में था, स्केचिंग में था. तो ये बहुत फेमस कार्टूनिस्ट बने, बट ये भी अपने इस नॉवल में अपने डेली लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आर्मी आती थी इनके घरों के बाहर, कुछ साइन बना के जाती थी, या एकदम सब एक पर्टिकुलर एज के आदमियों को घर से बाहर बुला के चेक किया जाता था कि कोई मिलिटेंट सस्पेक्ट तो नहीं है. तो इनकी मदर डरते ही रहती थी कि शी यूज्ड टू ऑलवेज प्रे कि स्कूल ना ही खुले, से अच्छा इनको स्कूल भेजोगे, कभी कुछ गोलाबारी हो जाए, या कभी से फॉर एग्जाम्पल साजिद जब फर्स्ट क्लास में थे, इनकी टीचर किसी प्रोटेस्ट में ले गई इनकी क्लास के साथ, वहां पे टीयर गैस छोड़ दिया गया, तो एक पहली क्लास का बच्चा अलग हो गया. सो ही वाज he was thinking of all these experiences and weaving into his story that there are no fixed sides taking that these people are doing. किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड को लेके ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक बहुत ही एक ह्यूमन एंडेवर है जिससे ये अपनी लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आई ओपनिंग रहा मेरे लिए इनको पढ़ते हुए. सो दैट इज व्हाई these 3 were taken. As you can see, all 3 are men. I was trying to find a women author जो कि मुझे मिली भी, सुधा कॉल करके, जिन्होंने टाइगर लेडीज लिखा था, बट उन्होंने अपना ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस 1960s के टाइम का था, तो आई कुडंट टेक हर. So that was the reason these 3 books by these authors were chosen. Am I still audible to all? Can you all hear me? Can you just type yes so that I know I'm not speaking to us? Yes, Mansi, very clear. Yes, go on. So, Likta, can I please request you to come to the next slide? I cannot see it on the screen. Can everybody see research design? Yes. ठीक है. So, research design में मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह लिखा है. मेरा मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल स्टाइल से कोई रिसर्च डिजाइन नहीं था जिसको मैं टर्म्स दे सकूं और जिसको मैं एक टाइटल दे के छोड़ दूं. तो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि एक्चुअल में किया क्या इस रिसर्च में. सो सबसे पहले तो सिलेक्शन एंड प्रिलिमिनरी रीडिंग ऑफ चोजन नॉन फिक्शन वर्क. ये भी फाइनलाइज नहीं था. जैसे पहले स्टार्टिंग में जब मैम से बात हुआ तो मैम सजेस्टेड कि एटलीस्ट यू टेक 5, if not more not less, at least take 5. बट उन 5 को चुनने का भी एक रैशनल होना चाहिए. you need to have a reason why are you choosing and why they would be significant for the research. तो 5 नहीं मिल पाए और 3 से ही फिर हमने, और ये भी फाइनलाइज नहीं हुआ था काफी समय तक कि ये 3 तक ही हम सीमित रहेंगे. तो वो कुछ मंथ्स का दायरा था कि अगर मुझे कुछ और मिल जाता है रिलेवेंट, मैं उसको पढ़ूंगी. एक बार पढ़ने के बाद, स्टोरी से फेमिलियराइज होने के बाद, ओवरवेल्म होने के बाद, दोबारा उन बुक्स को मैंने पढ़ा और कुछ डोमिनेंट और रिकरेंट थीम्स को लिख लिया एक जगह पे. सो जैसे बार बार बात हो रही है डर की, बार बार बात हो रही है जहां हम रह रहे हैं वो सेम नहीं है, या मेरा घर छूट गया. बार बार बात हो रही है
कि मुझे इस स्पेसिफिक इंसान या इस स्पेसिफिक कम्युनिटी या इस स्पेसिफिक एरिया से इनसिक्योरिटी फील हो रही है, डर लग रहा है, तो मेरे पास ये सारे इमोशंस, मेरे पास ये एक्सपीरियंसेस, मैं इनको एक जगह लिख रही थी, बार बार कौन से आ रहे हैं और प्रिडोमिनेंट तरीके से कौन से बुक्स में से, ऑथर्स के अकाउंट में से उभर के सामने आ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद मैम सजेस्टेड कि जो ये डोमिनेंट और रिकरेंट थीम्स आ रही हैं, आपको इनको थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा। अभी तो आप इनके एक्सपीरियंस से एक नोट बना रहे हैं कि ये बार बार रिकरेंट और प्रेडोमिनेंट वे से दिखाई दे रहा है, बट आपको इनको थ्योरेटिकली लोकेट करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिसके बिना हम इन एक्सपीरियंसेस को रूट नहीं कर पाएंगे, जिनके बिना हम इन एक्सपीरियंसेस को अपनी बचपन की समझ पे ऐड नहीं कर पाएंगे। सो हमें रूट करना बहुत जरूरी है। सो इफ यू कैन सी, मैंने कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क और डोमिनेंट रिकरेंट थीम में टू एंड फ्रो वाला एरो बनाया, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को गाइड कर रहे थे और लीड ऑन कर रहे थे। से फॉर एग्जाम्पल, बहुत अकाउंट्स में वायलेंस के बारे में, वायलेंस का जिक्र बार बार हो रहा था, तो मैंने वायलेंस के ऊपर थोड़ा लिटरेचर पढ़ा और वायलेंस क्या होता है, उसका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्या मतलब कोई ऐसा भी कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को इतनी ब्रुटैलिटी से मार रहा है। तो मुझे इन सवालों को थ्योरेटिकली समझना था। तो मैंने, अब वायलेंस भी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो वो कॉन्टेक्स्ट मुझे नॉवेल से मिल रहा था और उस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए मैं थ्योरेटिकल रीडिंग, स्कॉलरली आर्टिकल्स उसके ऊपर पढ़ रही थी, which ma'am was suggesting me. I was talking to people, I was going to libraries, and I was building up on that. So that is why this to and fro thing is very important, क्योंकि आप वायलेंस के ऊपर तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, यू नो, देयर इज नो एंड टू इट। वायलेंस इज वन सच थीम। होम एक बहुत थीम प्रेडोमिनेंटली इमर्ज हो रहा था। होम के कॉन्सेप्ट को या होमलेसनेस को भी आप बहुत पैरामीटर्स से समझ सकते हैं। देयर इज एंडलेस स्कोप ऑफ डूइंग दैट, बट यू नीड टू गो बैक टू द थीम्स दैट आर राइजिंग आउट ऑफ द नॉवल, and they were guiding, and you know, based on that I was reading them again. So this to and fro thing was going on. It was supplemented with regular discussion with my research supervisor Namita ma'am and many peer scholars. तुलिका से कभी बात हुआ, विकास सर से बात हुआ, तीन मूर्ति में कुछ लोग मिल गए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से, उनसे बातचीत हुआ। तो कुछ बातचीत करके एक मोटा मोटा ढांचा मुझे दिखने लग गया था 3-4 महीने के बाद कि हाँ, ये रिकरेंट थीम्स आ रही हैं और मुझे इन पे समझ बनाना है, बट कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा था, और जो कि मुझे बहुत एंशियस भी कर रहा था कि लोग चैप्टर खत्म कर रहे हैं और दे रहे हैं और मैं केवल पढ़े जा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैंने मैम को बहुत तंग भी किया, मैम आप बताओ मुझे चैप्टर लिखना है, कैसे लिखूं। वो एक फिक्स फॉर्मेट में चैप्टर नहीं आ रहा था, बट काफी महीने थोड़ा पढ़ने के बाद मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर समझ आ रहा था। उसी स्ट्रक्चर से, कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल स्ट्रक्चर, उसको टर्म बोल रहे हैं, वो मैं अगली स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करूंगी। मैम 40 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, मैं 10 से 15 मिनट और बोल लूं? बिल्कुल बोलो। ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी और रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन हुए थे, वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। तो लिखा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क, एंड कैन समबडी टाइप इफ इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन? It is visible मानसी, go on. थैंक यू मैम। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 4 मोटे मोटे एरियाज निकल के आ रहे थे, जो कि मेरे कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क का
हिस्सा बने. So home and rootlessness, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ द अदर, एक अदरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंट तरीके से निकल के आ रहा था. और स्पेसिफिकली अगर मैं इन 3 ऑथर्स की बात करूं तो अदरिंग, रिलीजियस अदर निकल के आ रहा था और स्टेट एज द अदर निकल के आ रहा था. वायलेंस, मैनिफेस्टेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, एज आई ऑलरेडी सेड, वायलेंस को भी समझने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत पर्सपेक्टिव्स हो सकते थे, बट मैनिफेस्टेशंस, किस तरह से वायलेंस मैनिफेस्ट करता है और किस तरह से एक्सपीरियंस किया जाता है, दैट मीन्स what it means to be violated was something which I had chosen to focus on based on the reading of my novels. चौथा important aspect निकल के आ रहा था feelings of security और insecurity. तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकल के आया थ्योरी और नॉवेल्स पढ़ने के बाद कि सिक्योरिटी केवल फिजिकल सिक्योरिटी नहीं होता, वो ये भी फूड सिक्योरिटी भी होता है, कम्युनिटी सिक्योरिटी भी होता है. सो इस तरह के बहुत सारे एंगल्स कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क से निकल के आए. मैं इनमें से किसी एक थीम का एनालिटिकल फ्रेमवर्क के सवाल आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल, होम एंड रूटलेसनेस में थ्योरी पढ़ के और नॉवेल्स को पढ़ के कुछ सवाल जो कि मेरे फॉलो अप रिसर्च क्वेश्चंस भी बने, वो निकल के आए कि हम आइडिया ऑफ होम को क्या मीनिंग और इमोशन एलोकेट कर रहे हैं. इज होम ओनली अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर एन इंडिविजुअल? व्हाट इज इट्स सोशल सिग्निफिकेंस? हाउ डज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस रूटलेसनेस? एक घर छूट देने से और घर वापस ना जाने से या घर के आसपास का माहौल चेंज होने से रूटलेसनेस की फीलिंग कैसे एक्सपीरियंस होती है और वो बचपन को कैसे डिफाइन, इन्फ्लुएंस और बहुत मेजर वे से इफेक्ट कर रही है, वो एक सवाल था. In what ways does it affect his or her sense of identity? What are the ways in which an individual copes with the loss of a home? So ये एक थीम के कुछ सवाल मैंने पढ़ के आपसे शेयर किए. मैं बाकी थीम्स के अभी नहीं कर रही हूँ. Tulika, I would request you to come to slide number 6. It's come, Mansi. So I'm not going to read every pointer, but it is just for the scholars to have a look कि ये कुछ इस तरह के डिस्क्रिप्शंस मुझे ऑथर्स के राइटिंग में मिले जो कि मैं एक कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क की एक थीम के अंडर उसको पुट कर पाई. जैसे I knew I was in permanent exile. I could own a house in this city or any other part of the world, but not in the Kashmir Valley from where my family came from, and so on. तो लिखा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगले स्लाइड पे अगर आ सके तो. कंस्ट्रक्शन ऑफ द अदर आ गया. हाँ जी. सो मैंने इसमें बस कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं उन नॉवेल्स से ही उठा के जो कि मेरे लिए एक रिकरेंट थीम स्टार्टिंग के स्टेज में बने, जिनसे मैं ये कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फ्रेमवर्क इवॉल्व कर पाई. सो दीज आर some of the instances in which the author is articulating their experience of engaging with the other. So these are few examples. Ma'am, I don't need to read it now. You may read one illustrative example of each. Yeah, read So, out one. I'm reading the second one. Frisking was the excuse that the devils, soldiers, used to tarnish the honor of our sister who had gone to visit her only brother in the prison. This is written by Sajjad. So there's this strong emotion that is expressed aimed at the army official. So इसको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बार बार निकल के आ रहे थे. सो आई कुड क्लियरली सी कि ये अदरिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप एक अदर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो vis-a-vis yourself and you are articulating your experiences in those tones again and again. तो लिखा आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आप स्लाइड नंबर 8 पे आ जाइए प्लीज.
Yeah, she's come. Construction of the other second slide. Yeah. जी, so these are some more examples which I could pick up from the book. ये पंडिता की किताब में से है. मरियू बतब मरियू to die you pandits die. So by the time in 90s when Rahul Pandita and his family and many other family members, listening to all these comments had become something really common. So there was a very strong way and persistent way in which they were made to feel like another in their everyday life. Mansi, you may read the last example. जी. So ये लास्ट एग्जाम्पल पंडिता की किताब में पेज नंबर 103 पे था. You have been evicted out of our homes by Muslims. You know that, right? What does it do to you? Whether you feel something inside about it. What do you feel? Do you feel angry? How angry? Will you accept it silently like a napunsak, or do you want to take some action? जब पंडिता जम्मू में एक रीसेटलमेंट कॉलोनी में थे, तो वहां पे कुछ लोग इंस्टिगेट कर रहे थे यंग कश्मीरी पंडित लड़कों को इस तरह की बातें बोलते हुए. तो ये कॉन्टेक्स्ट है उस बात का, बट कहीं ना कहीं ये बार बार एम्फसाइज किया जा रहा है कि आप भी अदर हो और आपको अदर की तरह ट्रीट किया गया. इस सेंस में रिलीजियस अदर है, इसमें स्टेट का अदर का एग्जाम्पल पहले वाली स्लाइड में था. मैम आगे चले. चलिए. Next. हाँ, तो लिखा स्लाइड नंबर 9 प्लीज. आ गया वायलेंस. तो ये वायलेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं. मैंने ये टर्म बहुत सोच समझ के लिखा था, मैनिफेस्टेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं वायलेंस को इन्हीं 2 दायरों से ही देखना चाह रही हूँ. मैं इसके बियॉन्ड या इसके आगे नहीं जा रही हूँ. ये 2 दायरे एग्जाम्पल से निकल के आ रहे हैं. If the one who's initially chosen, पंडिता का अकाउंट ले रही हूँ, is not to be found, a proxy suffices. It is all about numbers. It is all about how many are killed. It is known that if one among them is killed, 1,000 will flee. So he's referring to the exile of Kashmiri Pandits that happened in throughout 90s and even beyond that. I want to interrupt here. This is just for everybody, that if you see the film Shikara, which came out a few weeks ago, that's also based on Rahul Pandita's real story. You can actually see a representation of this in the film. Okay? Yeah. तुलिका, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्लाइड नंबर 10 पे आ जाइए प्लीज. It's come. हाँ, ये बहुत लंबा एग्जाम्पल है, मैं ब्रीफ में समझा देती हूँ. बशरत पीर जब रिपोर्टर बन के कश्मीर में गए, तो उन्होंने एक मदर से बातचीत करके उनको पता लगा कि कैसे उनके दोनों लड़के आर्मी के ऑफिशियल्स घर से निकाल के ले गए थे ऑन द सस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, एंड शी सॉ वन ऑफ हर बॉयज बीइंग killed because he was made to carry some bomb to enter in a building, and she was able to rescue the younger one. छोटे वाले को वो किसी तरह बात करके गिड़गिड़ा के आर्मी वालों से बचा के ले आई थी. तो ये वायलेंस नहीं है तो और क्या है कि अगर मेरे को अपने बच्चे को इस तरह से देखना पड़ रहा है, या आई एम लिविंग विद द फैक्ट दैट समथिंग लाइक दिस हैपेंड. सो वायलेंस केवल फिजिकल वायलेंस ना होके उसके रिपरकशन बहुत आगे तक ट्रॉमा की फॉर्म में. ये वायलेंस सटल नहीं है, ये वायलेंस एक परफॉर्मेटिव एक्ट है जो कि पब्लिक स्पेसेस में दिखाया जा रहा है. ये वायलेंस छुपे स्तर पे नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है जो कि ओपन में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए किया जाता है. सो ये वो एग्जाम्पल उस तरह से बात कर रहे हैं. फिलिप, आपसे रिक्वेस्ट है 11th स्लाइड पे आ जाइए. फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी. इसमें से हम एक पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई होप you know that what soldiers do after an attack.
Do you want your own village burned? Have you forgotten we have young daughters? Do you want soldiers to barge into our homes? Have the fear of God. This is your own village. So एक गांव, एक पर्टिकुलर पीर के गांव में एक मिलिटेंट है और सबको पता है वो मिलिटेंट है और वो छुपा हुआ है और उसको ढूंढने के लिए आर्मी आ रही है और उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस आई थिंक पीर उस टाइम पे छोटे हैं, 12-13 साल के हैं जब ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं और ये कॉन्वर्सेशन हो रही है और ऐसा नहीं है कि उन्हें शील्ड कर दिया गया है या उनको बोल दिया गया आप यहाँ से चलो, दो एडल्ट्स के बीच में बात हो रही है, ये कॉन्वर्सेशन ओपन में हो रही है और देयर इज दिस कांस्टेंट थ्रेट कि अभी कुछ हो जाएगा, पता नहीं हमें खाना खाने को मिलेगा कि नहीं, किसी का तबीयत खराब है तो हम हॉस्पिटल भी जा पाएंगे कि नहीं, एंड सो ऑन। और ये कांस्टेंट थ्रेट जो है इसको एक हेडर के अंडर मैंने समझा कि सिक्योरिटी, फीलिंग्स ऑफ what it means to feel secure and what it means to not feel secure and how does it manifest in the accounts of growing up in Kashmir. I think we can skip slide 12 because it is giving some more examples of feelings of security and insecurity. Tulika, can we please come on slide 13? Yes, that's your struggles, Mansi. So now you can talk about those. इसमें मैंने लिखा है रिसर्चर स्टैंड्स एंड डायलेमा। मैं जब नॉवेल्स को पढ़ रही थी तो एक बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी हो रही थी प्रोटैगनिस्ट के साथ और मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही थी उनके स्ट्रगल और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, ये क्यों हो रहा है। बट मैं ये भी समझ रही थी कि मुझे इन सब चीजों को ऑब्जेक्टिवली समझना है, डिस्टेंस करके समझना है और एक ह्यूमन स्टैंड लेके समझना है। सो ये वाला स्ट्रगल मेरे राइटिंग में भी बहुत बार निकल के आ रहा था। जैसे एक चैप्टर है जिसमें मैंने ऑथर्स बायोग्राफी लिखी है और मैम सजेस्टेड यू समराइज दैट बुक सो दैट एनीबडी कैन पिक अप एंड नो व्हाट द स्टोरी वाज अबाउट। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लिसिट वे से उस राइटिंग में भी निकल के आ रहा था जहाँ पे मैं अपने मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ऐड कर रही थी। तो यू नो व्हेन आई यूज्ड टू टेक द ड्राफ्ट टू मैम यूज्ड टू से ये तुम बोल रही हो या ये ऑथर ने खुद लिखा है, तुम मत बोलो, अभी जो ऑथर ने लिखा है बस उसको डिस्क्राइब कर दो। सो ये बहुत कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद समझ आई कि ये कैसे रिजॉल्व अभी तक पूरा नहीं हुआ, बट हाँ ये एक स्ट्रगल था जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। नो मेन स्ट्रीम टूल्स ऑफ रिसर्च में कुछ क्रॉस चेक करने नहीं जा सकती थी किसी से, अगर मुझे कुछ और जानना था तो क्योंकि मैं फील्ड बेस्ड रिसर्च नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी लिखी हुई हैं बातें, उन्हीं से समझ बना रही हूँ, तो वो मुझे एक स्ट्रेंथ भी लगता था और एक नेगेटिव भी लगता था। स्ट्रेंथ इसलिए लगता था क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि शायद मैं बात करके किसी से कोई इतनी जल्दी या इतनी कंफर्टेबली शेयर ना करे, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी में लिख के दिया और जो मैं समझ पाई और मैं जान पाई, बट मैं क्रॉस चेक नहीं कर सकती हूँ कुछ। ये एक और दूसरा स्ट्रगल था। एक और चीज जो मैंने एक पॉइंट पे एक्सपीरियंस करी थी कि मैं कश्मीर में ग्रोइंग अप को एक पॉलिटिकल स्टैंड से भी देखने लग गई थी। मैं कुछ रीडिंग्स ये पढ़ने लग गई थी कि अच्छा इंडियन आर्मी सही है कि नहीं, या मिलिटेंट्स का डिमांड वैलिड है कि नहीं, या कश्मीरी यूथ ये डिमांड्स कर रहे हैं, ये होना चाहिए। सो इट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग टू रीड, बट मैम गॉट मी बैक कि लुक एट योर रिसर्च क्वेश्चंस, क्या तुम्हारे रिसर्च क्वेश्चन में एक पॉलिटिकल स्टैंड लेते हुए कश्मीर को समझना है या तुम ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस को समझना चाह रही हो। तो वो टू एंड फ्रो मूवमेंट कंटिन्यू रहा और वो रिसर्च क्वेश्चन से ड्रिवन रहा। रिसर्च क्वेश्चंस मेरे एनालिटिकल फ्रेमवर्क से डिराइव हुए थे, जो कि मैंने एक थीम आप लोगों से शेयर किया। तीसरा मैंने लिखा है लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड। कोई फिक्स्ड
डिसिप्लिन नहीं था जिसमें पढ़ के मुझे ये एक्सपीरियंस के बारे में सब समझ आता, तो अलग अलग डिसिप्लिन का रीडिंग रेफर करना पड़ा. सो कुछ सुधीर कक्कड़ का एक किताब पढ़ा, अमर्त्य सेन का आइडेंटिटी पे किताब पढ़ा, होम एज अ स्पेस, हाउस और होम में क्या अंतर होता है, रूटलेसनेस क्या होता है, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ रीडिंग्स में पढ़ा. अगेन ये चीजें डिराइव हो रही थी जो नॉवेल्स में मैंने पढ़ा उससे. और राइटिंग प्रोसेस, आई थिंक ये ऋषभ ने लास्ट प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से बोला था कि जब मैं लिख के ड्राफ्ट जाती थी तो इतनी भारी शब्द होते थे, इतना डिफिकल्ट होता था रीड करना. बहुत बहुत टाइम लगा मुझे ये सीखने में, शायद अभी भी सीखना है, बहुत ज्यादा सीखना है कि छोटे लाइन लिखना है, सिंपल लैंग्वेज लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, पैराफ्रेज कैसे करना है, कैसे लिखना है. मैम बहुत तंग होके मुझे बोलती थी, तुम तथागत को ये लाइन पढ़ के सुनाओ, अगर उसको समझ आ रहा है तो तुम डेजर्टेशन, तथागत मेरे बेबी का नाम है, वो 2 साल का था तब, तो इतना पुराने ड्राफ्ट्स खोल के खुद भी बहुत हंसी आती है कि ये क्या लिखा हुआ था. तो बहुत मुश्किल होता है, लेट मी टेल यू, सिंपल लैंग्वेज में लिख पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लेवल्स में आपको सोचना पड़ता है. आप केवल समराइज या किसी चीज को उठा के ऐसे ही नहीं लिख रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो और फिर लिख रहे हो. तो बहुत समय लगा. मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा कि सिंपल लैंग्वेज में समझ आने वाली भाषा में कैसे लिखना है. Tulika, can I please request you to come to the last slide? Can everybody see the last slide? Yes, Mansi. हाँ जी. So इस एम्पल डिसर्टेशन से मुझे ये समझ कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक लगा कि बच्चों के वॉइसेस, फीलिंग्स, ओपिनियंस और कंसर्न्स, उनके बचपन की संरचना में हम कैसे सुन सकते हैं और वो क्यों सुनने जरूरी है. बिकॉज हम बचपन को केवल एक एडल्ट द्वारा डिफाइन डेफिनेशन से नहीं समझ सकते हैं. उनकी बात को सुनना या उनकी मेमोरीज को स्पेस देना और उनकी एक्सपीरियंसेस को स्पेस देना इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. नेचर ऑफ चाइल्डहुड, जितने मेरे इनसाइट्स मुझे डिसर्टेशन से मिले तो बहुत अलग थे जैसे हम वेस्टर्न कॉन्सेप्शन से बचपन को समझते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ एडल्टिफिकेशन. They were undergoing the similar emotions as adults, like that of bereavement, grief, cultural rootlessness. तो जो कि ये बहुत कॉमन है कि बच्चों का बड़ों का बात हो रहा है, बच्चे नहीं सुनेंगे और ये सब. तो इस तरह का बचपन का एक्सपीरियंस भी एक रियलिटी है जो कि बहुत सारे बच्चे जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में बड़े हो रहे हैं, वहीं से उनकी स्कूलिंग हो रही है, वो एक्सपीरियंस करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी समझ बनाना जरूरी है कि हमारे लर्निंग कॉन्टेक्स्ट्स उनके लिव्ड रियलिटी से कितने इंटीग्रेटेड हैं या कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या कितने डिफाइन हो रहे हैं. हम टेक्स्ट बुक में क्लास में कुछ और पढ़ाए जा रहे हैं और एक्चुअल लाइफ में ये सब हो रहा है. तो डेजर्टेशन खत्म करने के बाद 2-3 चीजें इस पे मैंने पढ़ी थी. पीस एजुकेशन या इस तरह की रियलिटीज को हम क्लासरूम के सिलेबस से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. जूलिया डिकम का कुछ स्टडी था, तो वो मुझे एक एंगल नया देखने को मिला. और स्कूलिंग एक स्कूल आइसोलेशन में नहीं है बच्चे का, स्कूलिंग इंटरमिटेंट है. और स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड इज परमिएटिंग इनटू द स्कूल. ये समझ बनी मेरी डिसर्टेशन करके. थैंक यू. Thank you, Mansi. That was an excellent presentation. I think you took us through the whole journey very beautifully, and you also justified how we can do research without going to the field, but do very, very meaningful research and contribute to academic discourse. बहुत passion से, बहुत दिल से
और बहुत अच्छे आर्टिकुलेशन से आपने अपनी बातें रखी, and I'm really, really thankful to you for that. Now, I'm sure there are a lot of questions. So I would like to first throw the questions open to the MPhil scholars, and then we'll open them to the others in our group. So MPhil scholars, आप कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? Please unmute yourself and come forward and ask. It's first. कैमरा बंद कर लूं? कैमरा बंद कर लो, ठीक है, कर लो. हेलो मैम. या थैंक यू मैम. मानसी, आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी शेयर की. मुझे ये पूछना है कि आपने जो 3 किताबें चूज़ की हैं ऑटोबायोग्राफीज, मुझे जब मैं इस तरह की रिसर्च की बात करती हूँ तो अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस लोग ऑटोबायोग्राफीज में शेयर करते हैं वो उन्हें बहुत बार ट्वीक कर देते हैं, बहुत ऐसे छेड़खानी होती है, एंड कहते हैं कि रिलायबल नहीं होता है वो, और उसको पूरा अपना रिसर्च का बेस बनाना किस हद तक सही होगा. क्या ये सवाल आपसे भी पूछा गया था, तो आपने किस तरह से डील किया इसको? It's really a very good question. Mansi, please respond. हाँ, ये वाला सवाल मैं अपने आप से ही बहुत बार पूछ रही थी, किसी और ने मुझसे पूछा हुआ कि नहीं, बट हाँ, एक चीज की समझ ये भी बनानी होगी, क्या लिटरेचर में या कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं, ऐसे हम दलित ऑथर्स के अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो क्या हम वो वैलिडिटी जब तक फील्ड से जाके ट्रायंगुलेट ना हो, क्या हम उनकी ऑथेंटिसिटी को खारिज कर सकते हैं? क्या हम उसको एक लिमिटेशन मान के उस रिसर्च की बाउंड्री सेट करके उसे उसी सेंस में समझ नहीं सकते हैं? क्या लिटरेचर से जो हम समझ बना रहे हैं, तो ऐसे तो लिटरेचर से कुछ भी समझ बननी बंद हो जानी चाहिए जब तक हम 4 सोर्सेस से वैलिडेट ना कर रहे हो. So, I think that you might also justify by saying that you came across several studies which established the linkage between literature and education, literature and psychology, literature and sociology, and literature being an authentic socio-emotional suggestive source of meaningful reality. You might expand on that. Yeah. So, इन्हीं सवालों के साथ मैंने अनीता वैद्यनाथन की पीएचडी थीसिस पढ़ी थी सीआई में. तो उन्होंने विमेन के एक्सपीरियंस के थ्रू उनकी लाइफ में एजुकेशन कैसे परिवर्तन लाता है उनके अकाउंट से देख के लिखा था, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने रैशनल में एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लिटरेचर को ये मान रहे हैं कि वो प्रोटैगनिस्ट के इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रही है, और हम समझ पा रहे हैं लिटरेचर में एक इंडिविजुअल के सोशल रिलेशंस, हम समझ पा रहे हैं वो इंडिविजुअल सोशल इंस्टीट्यूशन से कैसे एंगेज कर रहा है, सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस में कैसे एम्बेडेड है, तो हम क्यों नहीं उसकी बात पे अपनी समझ बिल्ड कर सकते हैं? क्योंकि लिटरेचर यूजुअली इन लिव्ड एक्सपीरियंसेस, प्रोटैगनिस्ट के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को इनकैप्सुलेट करती है, तो हम इनमें से कुछ मीनिंगफुल नरेशंस निकाल के उस प्रोसेस की समझ क्यों नहीं बना सकते हैं? Ma'am, hello. I want to add to that one note. I just want to add before I give it to the next person. See, Pooja and others, important for you to understand that, you know, we often go to the personal subjective diaries of a lot of people to understand history. In history, diaries and biographies, etc., are taken as bona fide sources. So, you know, in education, we have to always have a multifaceted lens. हम ये नहीं मान के चलेंगे कि सिर्फ triangulated sources जो हैं वो authentic sources हैं. जहाँ भी हम construct, reconstruct कर सकते हैं और फिर हम उसके लिए एक validation framework, एक conceptual analytical रूप में develop करते हैं, we can proceed with research of that kind. Okay, so we must have that kind of openness. Okay, we can come to Pankaj, the next person who wants to ask. Pankaj, आप आइए. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. आपने मानसी मैम, आपने जो आज हमें ये बताया, ये मेरे लिए पर्सनली काफ़ी
बेनिफिट इसका मुझे मिलेगा क्योंकि मेरी स्टडी भी एक डेस्क जो स्टडी है वही है। तो मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो आपने इसमें फैक्टर्स रखे थे जैसे पीस और चाइल्ड के इमोशंस या फिर उसकी और भी जो आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है, ये आपने जो अपना सैंपल लिया था जो 3 किताबें उसी में से फाउंड किए थे कि आप ये पहले से लेकर चले थे कि मुझे ये 3-4 चीजें जो है ये देखनी है? Mansi, will you please answer? Yeah. हाँ जी सॉरी सवाल किसने पूछा? बशरत? पंकज। हाँ पंकज, कुछ भी फिक्स नहीं था, कुछ भी लेके हम नहीं चले थे, जो कि मेरा एक एंजाइटी का बहुत बड़ा सोर्स भी था। बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही थी, इमर्ज हो रही थी और साइमल्टेनियसली बिल्डअप हो रही थी एक दूसरे पे। तो मैं कुछ भी लेके नहीं चली थी कि मुझे ये वाला इमोशन इनकैप्सुलेट करना है या मुझे ये वाला फीलिंग देखना है या मुझे ये वाला स्पेसिफिक सोशल रिलेशन देखना है। तो इतना पता था कि मुझे एक्सपीरियंस को समझना है। तो जो थीम्स बुक्स में से निकल रही थी उन्हीं को मैं थ्योरेटिकली पढ़ रही थी, समझ रही थी और उन्हीं से और उन्हीं का लेंस लेके उन थीम्स के ऊपर बिल्डअप कर रही थी। थैंक यू मैम। Thank you. Next question, please. Anybody else wants to come forward and ask? Please, MPhil students, feel free to ask questions. Any more questions? MPhil group se agar nahi hai, so then it's open to all others. If anybody wants to come forth and make a comment or ask a question or seek clarification, you're most welcome. Any questions? ओके मानसी, मेरा प्रश्न है, अब आप उसका उत्तर दीजिए। हाँ, आपसे पूछ सकती हूँ मैं एक प्रश्न? हाँ जी मैम। ओके, ये बताइए, व्हेन यू टुक अप दिस होल स्टडी एट द इंसेप्शन पॉइंट, आपको फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, आपने स्काउटिंग भी नहीं करी थी, आपने बुक्स भी नहीं लोकेट किए थे, आपको बस ये था कि आप चाइल्डहुड इन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना चाहती थी, ठीक है ना? हाँ जी। एंड यू वर इंटरेस्टेड इन डिकंस्ट्रक्टिंग चाइल्डहुड इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है ना? हाँ, आपने हमें ये बताया कश्मीर ने आपको क्यों फैसिनेट किया, ये तो आपने बताया, बट सपोज आपने ये स्टडी मणिपुर में की होती, है ना, या सपोज आपने ये स्टडी बस्तर में की होती, और मैं बस्तर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर में अमिता को बुलाऊंगी। अमिता ने बहुत बढ़िया फील्ड वर्क बस्तर में किया है, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन भी था। तो वुड योर स्टडी हैव बीन डिफरेंट? मैम, जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में स्टार्टिंग में जो स्टडीज अंडरटेक हुई थी, जब उनका लिटरेचर रिव्यू किया था, तो कुछ कॉमन थ्रेड्स उसमें भी निकल के आ रहे थे। वो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन में वो स्टडीज हुई थी और कुछ कॉमन चीजें उसमें निकल के आ रही थी। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक चीजें नहीं थी, जैसे एक एडजस्टमेंट की बात हो रही थी बच्चों के स्कूल में, एक कल्चरल बेरीवमेंट की बात हो रही थी, पेयर रिलेशंस की बात हो रही थी, एंजाइटी की बात हो रही थी, इंटरमिटेंट स्कूलिंग की बात हो रही थी। तो कुछ कॉमन पैरामीटर्स मुझे मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट जोन की स्टडी में लेके चलूं तो वो मैं लेके ये पैरामीटर्स कंसिडर कर सकती हूँ, बट हाँ जो स्पेसिफिक इमर्ज होंगे वो वेरी करेगा कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये स्टडी हो रही है। थैंक यू मैम। Okay. Any more questions? Otherwise, I would like to invite Amita. Amita, if you're there, please come forward. I want to introduce Amita to you. Amita has done some very, very good research in Bastar. She went there, she lived there, she did some very, very significant field work. So although she has also looked at education in a conflict situation, she actually went to the field site. Amita, can I call you forward to tell us what you faced as issues and problems there, please? Amita, are you there? Yes, ma'am. हाँ अमिता, प्लीज शेयर विद अस, प्लीज शेयर विद अस। थोड़ा आप 5-10 मिनट लेके बताइए आपने क्या काम किया है।
गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैम ने मुझे अचानक ही बोल दिया, सो जो कुछ भी मेरे दिमाग में है अभी, एंड ये स्टडी मैंने ऑलमोस्ट 2009 में किया था, एंड माय रिसर्च थीम वाज पीपल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, अ केस स्टडी ऑफ छत्तीसगढ़। सो पहले तो मैं यही बोलूंगी कि हाउ इट बिगैन ऑल ऑफ ये एक शाम में बस अपने गाइड के साथ बैठी हुई थी, डॉक्टर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के साथ, एंड उस समय ये नक्सलिज्म और ये नक्सलाइट अटैक्स बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे। दैट वाज समवेयर इन 2006-7 के आसपास की बात है ये। सो और रोटी के साथ अचानक डॉक्टर प्रोफेसर पंकज ने मुझसे कहा कि तुम भी तो छत्तीसगढ़ की हो, सो व्हाई डोंट यू डू सम स्टडी ऑन छत्तीसगढ़। एंड बिकॉज नक्सलिज्म वाज एट इट्स हाइट, सो वी डिसाइडेड कि हम ये दो एरिया में कुछ चीजें शिक्षा को लेके जोड़ते हुए हम इस पे रिसर्च करेंगे। देन आई स्टार्टेड डूइंग माय बेसिक रीडिंग्स अपॉन दिस नक्सलिज्म एंड वहाँ के एजुकेशन को लेके। But as such, Chhattisgarh was created in 2000, and nothing बहुत ही ज्यादा रिसर्च या स्कॉलरली आर्टिकल्स या कुछ रीडिंग मटेरियल मुझे छत्तीसगढ़ पे नहीं मिले, एक्सेप्ट बस उसकी क्रिएशन के ऊपर। बट एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मुझे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा कि हाउ इट वाज क्रिएटेड। एक पॉलिटिकल स्टांस मुझे थोड़ा बहुत समझने को मिला था कि हाउ द पॉलिटिकल जो वहाँ पे पूरा सिनेरियो चला, एंड फ्रॉम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाज क्रिएटेड। सो ये कुछ बहुत बेसिक चीज मुझे समझ में आए कि वाई छत्तीसगढ़ वाज क्रिएटेड, बिकॉज इट वाज completely a tribal zone area and it required very specific focused action by the government for its development. एंड फिर उसके बाद एजुकेशन को लेके अभी चीजें मेरे पास कुछ नई नहीं थी वहां के समझने के लिए कि किस तरह का स्ट्रगल है, बिकॉज इट वाज अ न्यू स्टेट। तो मैंने ग्रेजुअली ट्राइबल इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज को समझने की कोशिश की, और फिर मैंने मैं न्यूपा कंसल्ट कर रही थी, न्यूपा यूनिवर्सिटी, तो वहां पे मैंने फिर ट्राइबल रिलेटेड जो फील्ड वर्क है या एजुकेशनल जो भी रिसर्च किया गया था वो मैंने पढ़ना शुरू किया। एक चीज मैंने रियलाइज की, तब तक मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि व्हेन वी ऑलवेज हम हमेशा जब हम ट्राइबल्स की बात करते तो वी टेक इट एज अ अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। तब तक मेरे दिमाग में भी यही था कि ट्राइबल्स हम एक ब्लैंकेट अप्रोच लेके चलते हैं उनके इश्यूज को समझने के लिए। तो अभी तक मेरी समझ बस यही बनी थी कि ट्राइबल इश्यूज, वी हैव सम handful of issues which may be very common to all the tribal states. तो ये मैंने अपनी समझ बना ली थी। एंड मेरा जब सितंबर 2009 सितंबर 2009 में जब मैंने अपना प्रपोजल सबमिट किया था, अपने पीएचडी प्रपोजल, तो मुझसे जब पैनल क्वेश्चंस थ्रो किए तो दे वर पुटिंग अप द क्वेश्चन which I was answering from the perspective of the readings that I have done. So जो समझ बनी थी, तो जिन्होंने जो किताबें लिखी वो उनकी समझ थी, that was their understanding, not mine. तो मुझसे प्रोफेसर अनीता रामपाल ने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन किया, ये तो एक पर्टिकुलर ऑथर बोल रहा है, आप क्या बोलते हो उसके बारे में। तो ये बाद में मुझे लेटली समझ आया कि ये तो उनकी समझ है एक पर्टिकुलर एरिया की, एक पर्टिकुलर ट्राइब की, बट देन व्हाट अबाउट माय अंडरस्टैंडिंग। सो दैट लेड मी टू द फील्ड। तो मैं प्रपोजल बनाने के लिए ही अगस्त 2009 में फिर मैं फील्ड में चली गई। 15 अगस्त से पहले का टाइम मेरे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठा, क्योंकि 1 से 15 15 अगस्त, और 15 अगस्त नक्सल एरियाज में काला झंडा के नाम पे सेलिब्रेट होता है।
उस दिन वहाँ पे इट इज नॉट अलाउड टू होस्ट द नेशनल फ्लैग। तो ये मेरे को बहुत अप्रोप्रिएट टाइम मिला वहां जाके फील्ड में चीजों को समझना। तो इस तरीके से मेरा एक फील्ड जर्नी शुरू हुई, राइट फ्रॉम मेकिंग द प्रपोजल। एंड अगर मैम नमिता मैम कहेंगी तो फिर मैं इससे आगे जो मेरी फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस है तो वो मैं किसी सेशन में शेयर करना चाहूंगी मैम। बिल्कुल, हम आपको बुलाएंगे अमिता एक सेशन Yes, में ma'am. शेयर करने के लिए, ठीक है? जी, बिकॉज your work is fascinating, absolutely, as we are your fans, absolutely, the kind you of so much. work you have always shared with us. हम आपको बुलाएंगे, ठीक है? Yes, हाँ. ma'am. So basically I invited Amita to speak this out to you, all of you, because you must understand how there are different ways of looking at conflict and of looking at meaning making and lived realities in conflict zones, है ना? So the spectrum is very vast, और जिसको जिस area में research interest है, they can pick up sources and they can work with sources. So that is important. I also want to share, thank you Amita. I Yes, also want to share with you that if you see the movie Shikara, coming back to Mansi's work, some of you may have seen it. It's available on Amazon Prime. I saw it 3-4 weeks ago. राहुल पंडिता की कहानी पे बेस्ड है, और अभी भी आपको when he's reconstructing what Kashmir was, आपको actually जो मानसी के quotes हैं और जो growing up का एहसास है, it will come alive for you. That's one very important thing. The second fact which I want to share with you is that Basharat Peer, who wrote Curfewed Nights, he's a senior editor with New York Times. And I find that Basharat Peer encourages all the stories based on conflict. आप conflict पे कोई piece लिखे, कोई story लिखे, he immediately publishes it. So कहीं पे उसके growing up में ये उसके अंदर रम गई ये बात that this is a very, very important representation. So, the importance of childhood, lived realities in childhood, and the aftermath of that, and the impact that it has on your adult years, you can see a continuity or a strain or a thread of, linkage there as well. So I just thought I would share these things with you. Okay, we are further open to questions or to comments, observations, if there are any. There are other literators with us. Shefali is a literator. Shefali, have you anything to say on the use of literature, as Geeta Rai is with us, on the use of literature as a representation of lived reality, especially non-fictional biographical writing? कुछ आप कहना? Yes, Vidushi wants to ask a question. Please, Vidushi. आइए, Vidushi can start. Vidushi, good evening, ma'am. Am I audible? Yes, yes. So, ma'am, मेरा question मानसी मैम से है. Thank you so much for your presentation. बहुत ही wonderful था, and this is for the first time that I saw कि conflict को books और childhood के context में कैसे समझा जा सकता है. But I've always read newspapers and features and publications. तो जैसे आपने initial experience बताया कि it was very quantitative in nature, more about numerical and statistics. But very often I have come across features and published writings जिसमें वो वहाँ की actual situation के बारे में reporters लिखते हैं. So my question was that since you chose the sample as 3 autobiographical accounts, kabhi jaise after your research even, kabhi when you came across any such writings which are published in some credible newspapers or websites, do you find any any difference or in how it's reported? A constant thing that was coming into my mind was कि जैसे उन्होंने अपने growing up experiences को describe किया और जैसे कोई person वहाँ पे जाकर, जैसे आपके लिए वो possible नहीं था cross check करना, but जो journalistic writings में उसको जिस तरीके से portray किया जाता है, कितना अंतर रहता है उसमें, and reality को दो लोगों के मतलब दो perspective से कितना अलग तरीके से describe करते हैं, या can we experience the similar themes that you came across उन books में और in journalistic writings में? So that was something that I wanted to know. A very, very good question. Mansi, please respond. विदुषी, आप एक सेंटेंस में प्लीज एक बार अपना सवाल समराइज कर दीजिए प्लीज.
Oh, I'm so sorry. So मैं बस ये जानना चाहती थी कि लाइक अपार्ट फ्रॉम द बुक्स, जैसे आपके जो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज जैसे कश्मीर ही हो गया, काफी बार इसकी रिपोर्टिंग होती है न्यूज़पेपर्स में, जर्नलिस्टिक पीसेस निकलते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, दे आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू लाइक द स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो जो उनके ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स में जो उनकी खुद के एक्सपीरियंसेस को कैसे लिखा गया, और कोई रिपोर्टर वहां पे जाके उन्हीं सिचुएशन के बारे में लिखता है, अगर आपने अपने रिसर्च के दौरान या रिसर्च के बाद ऐसी राइटिंग्स को देखा, पब्लिश्ड जर्नलिस्टिक राइटिंग्स को, तो क्या आपको कुछ उसमें डिफरेंस कभी मिला, या मे बी क्या आपको सिमिलर थीम्स मिले उन राइटिंग्स में, क्या थीम्स अलग थे? सो मैं उस डिफरेंस को जानना चाहती हूँ कि वो दो तरीके का डिस्क्रिप्शन जो होता है, जो किसी उसने लिखा है जो वहां पे रहा है, और जो कोई वहां पे जाके लिखता है, क्या आपने वो कभी नोटिस किया? अगर किया तो वो क्या डिफरेंस रहा? उस तरीके से मैं पूछ रही थी। वेरी गुड क्वेश्चन मानसी। थैंक यू विदुषी। हाँ जी मैम। हाँ विदुषी, ऐसे कुछ किताबें मैंने रिसर्च के दौरान भी रेफर कर, कैन एवरीबडी हियर मी? यस प्लीज। ओके। हाँ, ऐसी किताबें रिसर्च के दौरान न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अरुंधति सेन के कुछ आर्टिकल्स थे, एएम शाह की किताब थी ऑक्यूपेशन एंड रेजिस्टेंस। सो इस तरह की किताबें मैंने रेफर करी जहाँ पे कुछ एक ब्रिज के ऊपर मैसेकर हुआ था, तो वो ऑथर्स के ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट में भी मिल रहा था, और एएम शाह जब ऑक्यूपेशन रेजिस्टेंस किताब में एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव लिख रहा है उसमें भी दिख रहा था। तो कुछ थीम्स और कुछ एरियाज ओवरलैपिंग थे, बट देखने का थोड़ा नजरिया अलग अलग ढंग से एक ही चीज को देखने का मिल रहा था। से फॉर एग्जाम्पल एक ऑथर के अकाउंट में दिख रहा था कि आजादी का स्लोगन सुनते ही उसके सर में दर्द हो जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, बिकॉज आजादी सुनते ही एक डर सा उसके बॉडी में आ जाता है। 10-15 साल बाद भी कहीं वो दिल्ली में भी स्लोगन सुन लेते थे आजादी के, तो उनको बहुत डर सा लग जाता था। बट दूसरे ऑथर के अकाउंट में दिख रहा है कि आजादी का स्लोगन सुनते ही बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था, और एक सेंस ऑफ बीइंग इमर्ज हो जाता था उस आजादी को सुन के, और सब अलाइव हो जाते थे, सब लोग एक्साइटेड हो जाते थे। तो एक ही टर्म और एक ही सेंटिमेंट और एक ही एक्सपीरियंस को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑथर्स के राइटिंग्स में भी दिखे, और जर्नल्स के राइटिंग्स, न्यूज़पेपर मैगजीन्स और बाकी के राइटिंग्स में भी दिखे। बट एक जो नेटिव पर्सपेक्टिव था, इनसाइडर पर्सपेक्टिव था, और वो छोटी छोटी डिटेल्स थी, वो मुझे ऑथर्स के अकाउंट में ज्यादा दिखी, जिससे मैं ऐसे लग रहा था कि वो बताए जा रहे हैं और आपकी आंखों के सामने चले जा रहा है। वो मुझे न्यूज़पेपर मैगजीन आर्टिकल्स में नहीं मिली, क्योंकि वो एक इंसिडेंट उठाते थे या कोई एक चीज पर्टिकुलर एंगल उठाते थे और उस पर टिप्पणी देके बात को खत्म कर देते थे। बट एक कंटिन्यूअस कनेक्ट इन ऑथर्स के ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस के अकाउंट में मिला, तो वो फर्क मुझे देखने को मिला। Thank you. Thank you. That was very well answered. And just for your reference and understanding, Vidushi also has a training in sociology. Tulika, you want to say something? Please say so. Hello. So, ma'am, I just wanted to add a little bit that. So, I've been reading the work. I've just finished reading Rahul Pandita's Hello Bastar. And if you read Rahul Pandita's work on Kashmir, which Mansi has referred to, so you will see the difference in what happens in when you're reporting as an outsider and when you're living that experience. So I'm just taking cue from what Vidushi was asking. So in Hello Bastar, you will see that Pandita has not been able to emote as much. It's a very sketchy writing. It's journalistic, so he's done a good piece of journalism, but he's not completely there in the field. So you feel the jump, and he's given a huge description, and it's very moving, but it's not as powerful as his writing on Kashmir. So when you're writing what you are living and what you are writing when you are an outsider,
And similarly, if you read other works on Kashmir, like Paro Anand's work, No Guns at My Son's Funeral, there also you see this difference in writing about something that you've lived and writing about going as an outsider to the field of conflict. And कितने भी हम उससे empathetic हो, वो एक difference उनकी writing में, मुझे राहुल पंडिता की writing में, because that's the work that's referred to, I could see that. So I think that also impacts what is written in magazines, because we are one step removed from having lived that experience. So autobiographical accounts also add the idea of how we construct our memories. So the memory construction is very emotive. Whereas when you are reporting, you are, you are living it as a reporter at that time, not having constructed your memories of the field at that time. That's what I wanted to add. Thank you, Tulika. That was very insightful and very meaningful. Geeta Rai wants to say something. Geeta, please come in. Geeta Rai? Geeta, are you there in the meeting? Okay. Yeah. Sorry, come. I had not unmuted myself. And after Geeta, Rishabh will say something. Yeah. Okay. Good evening, ma'am, and good evening to all. Thank you, Mansi, for the lovely presentation. And I just wanted to, ask you a question that, sometimes the author, when they write about some community, of course, in your sample, it was a autobiography, but sometimes when you write about some community and you've not lived there, then when the community reads about it, they feel offended because it is not how they have been projected as they should be, number one. And secondly, a book, when it is, they convert it into a movie, it's the depiction is different. There is some tweaking, and the demand of the cinema has something else from when you read it. What is your say on this? Because this is entirely your research work is it's more of a literature kind of research work, which Namita ma'am was also mentioning, and you also brought me back to the theory of Rosenblatt, which Shobha ma'am is very much keen, and she has done a lot of research on that. Can you enlighten me on this, Mansi, please? Thank you, Geeta ma'am. Just wanted to share with you. हाँ जी मैम. मैम, एक जो टिप्पणी है, क्या आप उन्हीं कम्युनिटीज या उन्हीं एरियाज पे रिसर्च कर सकते हैं जिनके हम इनसाइडर हैं? तो क्या रिसर्च करने का स्कोप किसी आउटसाइडर को नहीं हो सकता, या क्या कोई आउटसाइडर ऑब्जेक्टिवली, सिस्टमैटिकली, थ्योरेटिकली किसी प्रोसेस को या किसी कम्युनिटी के वे ऑफ लाइफ को समझने का अधिकार नहीं रखता? तो ये द्वंद्व बहुत टाइम से मेरे को भी लगता है. And I agree with you what you had just shared, but I also feel that if we are rooting these experiences, in other theoretical writings, if we are locating and elaborating and building up on it with valid literature review, we can get good understanding of what is happening. You don't need to necessarily be an insider and be belonging to the community of that. Say, for example, ma'am ने suggest किया था कि अमर्त्य सेन का Identity and Violence पढ़ो और सुधीर कक्कड़ का Colors of Violence पढ़ो. तो इन दोनों किताबों को पढ़ के मुझे बहुत इंसाइट्स मिले अदरिंग को लेके और वायलेंस को लेके, और राइट जब होता है तो हम एक इंसान को एक होमोजेनाइज्ड, डीपर्सनलाइज्ड वे से कैसे देखते हैं. तो ये सब, इन सब चीजों से जो ऑथर बात बोल रहे हैं और एक रिसर्चर की तरह स्टैंड्स लेके मैं उसकी समझ बना रही हूँ, there's a difference. I'm not just summarizing what the author wants to say, or I'm not paraphrasing what the author has said. So my stance and my position is coming from the point of view of a researcher, not as somebody who's just paraphrasing, describing, and summarizing what the author has said. So that's it, Namita ma'am. I wanted to just say this That's much. very, very well answered. And now, Rishabh, we give you the last interlude, and then I will
then I will thank Mansi. Rishabh, please come in. थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। मानसी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी प्रेजेंटेशन की, और जो डिबेट मैं सुन रहा हूं मुझे ऐसा समझ में आ रहा है इसे हमें एक ऐसे देखने की जरूरत है जो एक ही घटना को 4 अलग अलग लेंस से देखा जा रहा है, और इन चारों लेंस में जो डिबेट्स हैं, जो हमारे क्वेश्चन है, उसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे अगर पहला देखा जाए, पहली बात जो मानसी की प्रेजेंटेशन में बहुत शुरुआत में इन्होंने स्पष्ट कर दी कि हमारा क्वेस्ट ये था चाइल्डहुड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, या जो हमारी इंसर्जेंसी एरिया है, जहां पर वायलेंस प्रोन एरिया है, वहां पर हमें बचपन को समझना है। अब इसी बात को समझने के 3 अलग अलग लेंस दिख रहे हैं। अगर हमारा सबसे पहले हमने ये तय किया कि हमें चाइल्डहुड एंड वायलेंस को समझना है, एक पक्ष हुआ। फिर अब आप ये देख रहे हैं कि इसके बारे में ही किसी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, वह भी उसी मकसद से लिख रहा है जिस मकसद से रिसर्च की जा रही है। मतलब जिन लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपने बचपन के दिनों में कश्मीर के उस प्रभाव, उस हिंसा को दर्शाया, माना कि वो रिसर्चर नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइल्डहुड एंड वायलेंस के रिलेशनशिप को नहीं दिखाना चाह रहे थे। ये पहला लेंस हुआ। दूसरा लेंस, जो पत्रकार जाके या जो रिपोर्टिंग वहां की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? वो भी तो इसी मकसद से की जा रही है कि हम इन दोनों के संबंध को बता सकें, लेकिन हम उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि वे बाहर से जाके देखने वाले लोग हैं और उनको हम ऑथेंटिक माने या ना माने। तीसरा लेंस जो एक रिसर्चर देख रहा है और वो ये बात कहना चाह रहा है कि मैं यहां तक कैसे पहुंचूं। तो सबसे पहले मैं मानसी को बधाई देना चाहता हूं कि जो सोशल साइंस में इंपिरिकल रिसर्च का ट्रेडिशन है, वो ये मानता है कि मैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके रिसर्च कर रहा हूं, जिस चीज को देखना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे उस क्षेत्र तक, उस पार्टिसिपेंट तक पहुंचना पड़ेगा। ये एक तरह के सोचने का तरीका है। लेकिन हमारे पास यदि किसी की ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स मौजूद हैं, तो एक तरीके से आप खुद वहां जाके जो कलेक्ट करते, वह उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख दिया है। अगर मैं इसको कहूं कि भी मैं कुछ सोशल साइंस ऊपर काम कर रहा हूं, नमिता मैम जानती हैं, उसमें मैम 2 प्रकार की बातें आई हैं। एक वो सोशल साइंस होता है जहां हमारा मकसद थियराइज करने का नहीं होता है, हम अपने एवरीडे सोशल रिलेशनशिप, सोशल एक्सपीरियंसेस और उसका जो हमारा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, उसे हम दर्ज करते रहते हैं। और इसे हम सोशल साइंस ना कह के कई बार लिटरेचर की कैटेगरी में ले जाते हैं, और इसको भी हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे हम कल्पना के सहारे लिख रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसमें हम वास्तविकता को अधिक जगह दे रहे हैं। तो जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता को अधिक जगह दी जाती है, लेकिन हमने उसमें साइंटिफिक, जो सोशल साइंस में साइंटिफिक विद इन कोट्स जो हम यूज करते हैं, उसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए हम उसे एक सोशल साइंस के नॉलेज की तरह नहीं देखते, लेकिन उन्होंने अपने लिव्ड रियलिटी, लिव्ड एक्सपीरियंसेस को वहां लिखा है। इसलिए अगर आप सोशल साइंस का लिटरेचर उठा के देखेंगे तो कई बार कई जगह पर उसके लिए सॉफ्ट सोशल साइंसेस, फोक सोशल साइंसेस, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। अर्थात हमारे पास ये जो इस तरीके के ऑटोबायोग्राफीज हैं, जहां साहित्य है, जहां लिटरेचर है, उसको भी हम ऑथेंटिक मान रहे हैं। लेकिन अब मानसी के काम में क्या किया गया? मानसी के काम में ये किया गया कि जिस चीज को, जिस अनुभव को एज ए आउटसाइडर मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, उसको अनुभव करने वाले ने, जिसकी वो लिव्ड रियलिटी रहा है, उसने जैसे लिखा है वह मेरे सामने मौजूद है। उसको मैं देखकर अपनी थियरी से उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। एक कंस्ट्रक्शन तो उसका है जिसने लिखा, उसने अपनी मेमोरी के थ्रू अपने जो भी उसकी थी बातें, उसको वहां पर रखने की कोशिश की। अब रिसर्चर ने क्या किया? रिसर्चर ने विद ऑल हिज हर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, मेथोडोलॉजिकल एफर्ट्स, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। और बार बार अब ये जो सवाल उठ रहा है कि मेथोडोलॉजी की, अगर वह उस कम्युनिटी का नहीं है, अगर वह इनसाइडर नहीं है, तो क्या हम इसको ऑथेंटिक माने? और अगर क्या वो ऑटोबायोग्राफिकल है और ट्रायंगुलेट हमने नहीं किया तो हम इसको माने? इस तरीके की डिबेट सोशल साइंस रिसर्च की मेथोडोलॉजी में बार बार उठते हैं। लेकिन इसके सपोर्ट में मैं ये आर्ग्यूमेंट देना चाहूंगा कि जब आप मतलब अगर आप सोशल साइंस को साइंस मान के उसकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए ये सारे टर्मिनोलॉजी, ये सारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, तब तक आप सब्जेक्टिविटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको सब्जेक्टिविटी तक पहुंचने के लिए इतना ऑथेंटिक डेटा चाहिए जहां पर जो
जो उसको भोगा है, जिसने उसको लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसको लिखने वाला और बताने वाले में कोई अंतर ना रह जाए। तो कहीं ना कहीं जो ऑटोबायोग्राफी होती है, ये हमारे लिए लिखने वाले और बताने वाले के अंतर को समाप्त कर रही हैं। और जब हम इसे थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसको री इंटरप्रेट कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक वैलिड सोर्स ऑफ डेटा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके की डिबेट्स में हमें इस तरीके का, मेरा ये स्टैंड है जो मैंने थ्योरीज पढ़ी हैं उनके बेसिस पे। दूसरा, इनसाइडर आउटसाइडर का डिबेट भी हम बहुत उठाते हैं। इसके में गोपाल गुरु का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, जिन्होंने सोशल साइंस की मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रेज किया, जो तुलिका दीदी अपनी बात में कह रही थी कि हम क्यों आउटसाइडर या एमिकेटिक का पर्सपेक्टिव या जो उस कम्युनिटी का नहीं है उसको अदर क्यों मानते हैं। मैम उसका कारण ये जो थियरी में अभी मैं लेटेस्ट एक पढ़ रहा था, सोशल साइंस की इंडिजिनाइजेशन को लेकर रिसर्च हुई थी कि अफ्रीकन कंट्री में हम इसको कैसे इंटरप्रेट करें, और अफ्रीकन कंट्री के जो अलग अलग कम्युनिटी पे जो नॉन अफ्रीकन या जो यूरोपियन लोग रिसर्च करते हैं उसे ऑथेंटिक क्यों नहीं मानेंगे। वो गोपाल गुरु भी उससे इन्फ्लुएंस हैं। वहां पर एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जो कल्चरल सेंसिटिविटी है, जो कल्चरल बिहेवियर को समझने की एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, वह नहीं होती है। इस कारण हम एक इनसाइडर आउटसाइडर का व्यू लेते हैं। लेकिन अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप इसके लिए सेंसिटिव रहते हैं, तो आपके लिए इनसाइडर आउटसाइडर का डिबेट उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट हैंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस को ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पास एक अवेलेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थियरेटिकल फ्रेम है, जहां आप वायलेंस और द अदर का कॉन्सेप्ट जो मानसी ने बताया वो सब दिख रहा है। इस आधार पे मैं ये कहता हूं कि आप एक दूसरी कम्युनिटी के होते हुए भी अपने जो जिसकी आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसको आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो तुलिका दी ने बातें कही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने कल्चरली सेंसिटिव हैं, उनके कल्चरल इंटरप्रिटेशन को लेकर कितने तैयार हैं और कितनी आपकी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है। जो तीसरी बात थी कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग होती है उसको आप कैसे देखेंगे, वो एक अलग प्रकार का राइटिंग स्किल है, जहां पर आपके पास रिसर्च के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, न ही वहां ट्रायंगुलेशन का इशू है, न ही पर्सनल एक्सपीरियंस को नरेट करना है। वहां तो एक पर्टिकुलर जो वहां इंसिडेंट हुआ है उसका फैक्चुअल रिच, मतलब इंफॉर्मेशन रिच रिपोर्टिंग करनी है। तो वो जो इंफॉर्मेशन रिच रिपोर्टिंग है आपके डेटा को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन वह अपने आप में रिसर्च हो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स को मानसी ने चुना, वो एक बहुत सूझबूझ भरा कदम है, जहां आप ऐसे खतरनाक क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर पहुंच भी गए तो लिमिटेड टाइम में आप ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। वहां पर आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तो एक हो गया, और बीइंग एन आउटसाइडर you are reconstructing those original text with a particular theory. You are not reconstructing it with your personal beliefs. अगर मैं एज ए ऋषभ कुमार मिश्रा किसी नॉवेल को रीइंटरप्रेट करूं तो वो उसमें बायसेस आएंगे, लेकिन मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर एक पर्टिकुलर थियरी जिसको मैंने अपनी रिसर्च कम्युनिटी के साथ बिल्डअप किया उससे एनालाइज कर रहा हूं, तो बायसेस जाहिर सी बात है कम होंगे। मुझे बस इतना कहना था। थैंक यू मैम। Very insightful, very meaningful, and actually added immense value to a lot of our discussion and debate. Now, the last question I'm giving to Shefali, who has expressed a desire to say something, and then I will wind up this session. Shefali, please come forward. Shefali, are you there? Shefali? Hello. Hello. Yeah. Am I audible? Yes, you're audible, Shefali. Yes. Okay. Ma'am, it's not a question. It is just a thought. So while I was going through listening to Mansi's presentation, and I was listening to other people's questions and comments. I mean, just a thought crossed my mind that, this is a representation of childhood. Now, I was just wondering that, how this childhood would be represented if it comes through the voices of children, not as adults who have lived many more years in
on other cities or maybe countries, or whose experiences have already been filtered through many more years of experiences. So this, I mean, I don't know how selective or selective this reconstruction would be, and how different would this narrative be if it comes from children's voices. Will we have many more layers of reality if you know this representation of childhood, if this construction of childhood comes from children, you know, in their childhood? So this thought just crossed my mind, and I was reminded of Anne Frank's diary, The Diary of a Young Girl, who writes about her experiences during the Second World War. And so, you know, there is an articulation by an adolescent, an early adolescent, who at times, you know, presents a very grim picture of the whole situation, and at times, you know, she's very hopeful. So how different this articulation would be, you know, where, you know, this vacillation between hope and despair. Because Dr. Geeta Rai also mentioned about, you know, Rosenblatt, that, you know, there are different perspectives, different realities. Correct. So I just thought that, you know, how this would be if it unfolds through the voices of children in their childhood. You've actually, Shefali, raised a very valid point, and I will respond to this because this came up in the conversation that Mansi and I had. And but I just want to tell you that children have very limited vocabularies, and they are not necessarily in a culture of writing. And Yes. you know, she was looking at childhood from the stage of early childhood to adolescence, and so, you know, she could not find anything which existed, and you don't want an adult's representation of that. So if Basharat Peer, who has lived his childhood there, even if his lens has got colored manifold by the different sites and locales he's gone to after that, yet the impactful reconstructions will always remain as indelible memories. And that is a psychological reality. So it is hoped that what he therefore puts when he's recounting his life story will actually be a bona fide source which you can pick up on. This whole thing about children having very limited vocabulary, limited opportunities for expression, and in a conflict zone, you know, they're unable to write anything. If you look at Malala Yousafzai also, she had to rely on that BBC person to actually write up her story, right? She couldn't pen it down. She just had some stray things which she said, but that biography was all woven together by, I forget the name of that author, that BBC person who did it for her. So this is the issue, that you also have to have a rich, right, a written base or a written source from which you can pick up things. But yeah, when you're going to actually do field work, and then you can actually talk to children and all that, and you can build upon their lived realities, that's another thing. But here you're doing it because you can't go to the conflict zone. So this is one genre of working, okay, or one mannerism of doing research. I hope I've satisfied you, Shefali. Yes, ma'am, it was not a question, it was just a thought. I mean, just an observation. Yeah. No. Ma'am, I also have a question. Who is this? Monica. Yes, ma'am. हाँ, Monica. Yes. मैम बस ये छोटा सा क्वेश्चन है कि जो ये सैम्पलिंग हुई है जिसमें ये 3 बुक्स को चूज़ किया गया है, ये डायरेक्टली मतलब बहुत सारे बुक्स ढूंढने के बाद इस पे आया गया, या फिर पहले फील्ड को ढूंढा गया कि जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि वहाँ पे जैसे JNU का या किसी भी यूनिवर्सिटी का हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं। तो ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली में अभी हमें ऐसे सैंपल्स मिल सकते थे या मिल सकते हैं जो अगर हम कश्मीर पे भी करना चाहें तो ऐसे मतलब यू नो स्टूडेंट्स मिल सकते हैं जो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते थे या कर सकते हैं। We get your question. Yes, ma'am. Mansi, would you like to answer that? Please answer that. Yeah. Sorry, I didn't get your name. Monica.
मोनिका। मोनिका, मुझे जो ऋषभ ने भी डिस्कस किया और जो हम अभी तक डिस्कशंस कर रहे हैं, ये डिस्कम्फर्ट और मिसट्रस्ट क्यों? हम बात तो कश्मीरी माइग्रेंट से भी कर सकते हैं, हम बात कश्मीर में जाके नो मैम, मेरा ऑटोबायोग्राफी इस पे कोई ऐसा नहीं है कि उसको मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। इट्स अ वेरी मच वैलिड सोर्स। बट मैं बस यही क्वेश्चन करना चाह रही थी कि आपने पहले यही सोचा था कि हम बुक्स को ही देखना है, या फिर हम कुछ ऐसे सैम्पलिंग करेंगे जो इस तरह के सोर्सेज होंगे, या आपने पहले फील्ड के तरफ भी थोड़ा ट्राई किया था? मैं बस यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, मेरा कोई इस पे हाँ जी। हमारा जब डिस्कशन हो रहा था तो बात ये निकल के आ रही थी, मैम से भी जब बात हो रही थी और बहुत लोगों से भी बात हो रही थी, कि जो वहां रह के आया है और जो जिसने एक्सपीरियंस किया है अपने बचपन को वहां पे, वो कैसे हम अनकवर कर सकते हैं, कौन से बेस से कर सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं, उनका आइडिया ऑफ कश्मीर वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु हैव migrated during the times of turbulence and they have experienced it there. So थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो इसीलिए सैंपल इन बेसिस पे सेलेक्ट हुआ। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि फील्ड पे जाना है। सॉरी मैम, प्लीज। Yeah, I just want to add over here. Sorry, Mansi, I'm interrupting you, for Monica to understand. Monica, जब हम कोई रिसर्च करते हैं, खास तौर पे आप सब एमफिल स्कॉलर्स हैं, अभी आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, यू हैव टू वर्क विथ अ वेल डिफाइंड यूनिवर्स, ठीक है ना? आप पॉसिबिलिटी सब एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जो आपका एक वेल डिफाइंड यूनिवर्स है, व्हाई डू वी कॉल इट अ वेल डिफाइंड यूनिवर्स? एक तो उसमें बोनाफाइड ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए, it should have some credibility, and it should be out there in the wide published world as non-fictional writing, है ना? अब कोई एक हमें स्ट्रे कोई एक राइटिंग मिल जाए, किसी की एक चिट्ठी मिल जाए या कुछ, we are also not sure about its authenticity, but people, when they write in the published world and a good publisher has put it together and they claim it's a non-fictional writing, it's an autobiographical writing, it gets the stamp of authenticity. So that is also a very important thing to look at, okay? So ये सब issues होते हैं, but when you start, of course, you got to explore all possibilities. Okay, now I think we are running out of time and bandwidth. Mansi, you have stimulated excellent discussion. It's been a very, very rich and meaningful session. I have learned a lot from it, and I'm sure all of you have as well. Everybody's asked questions. Everybody has wanted to contribute and say something. Everybody's stimulated to take up research of a similar kind. One can see all of that. I can see Rashi in the center trying to also say something. But, we have to end it somewhere. But I'm very glad that, our minds are getting opened. और idea हमारा यही था that आपको तरह के approaches to doing research का एक exposure मिले, एक first hand account मिले from the researcher himself or herself, ताकि आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप अपनी तकलीफें भी वहाँ पे प्रकट कर सकते हैं. So I think that is something which is unparalleled. MPhil scholars, are you enjoying this? Are the MPhil scholars enjoying this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. aa raha hai. So that's very good. So we will continue this series through the month of June, if all are agreeable. MPhil scholars, agreeable to continue this throughout the month of June? Yes. Pooja says yes. No more responses. Bhavna says yes. Rajlakshmi says yes. Pankaj says yes. Monica says yes. Shweta says yes. Okay, so we will continue. Is Ravneet with us, or has Ravneet left the meeting? Yes. Anyway, our next presentation, yes, Ravneet are here. So Ravneet, अब childhood को आगे आप लेके जाएंगी. आपने भी बहुत बढ़िया काम किया है childhood पे, और आपका total approach to research अलग किस्म का है. I look forward to a really, really good presentation from you next Wednesday.
Wednesday को ही रखे ना everybody. हाँ, next Wednesday same time, and we will wait for Dr. Ravneet Kaur, who did excellent work in her PhD, got very good reports, to also talk about another way of researching childhood. Thank you very much, all of you, for making this such a meaningful session. Thank you. Thank you. Bye. Goodbye, Thank you, ma'am. everybody. I'm closing the meeting. Okay, bye. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Bye.